Okay, welcome back students to Shiksha Science Academy, and today we are going to start a new topic of mathematical tools, that is resolution of vectors. So let's start. What is resolution of vectors? We know that what is vector? Vector which has magnitude as well as direction, isn't it? We have discussed many of the things regarding the vector in the previous section of the mathematics video, but today we are going to resolve the vectors into its component directions. Okay, let's start. Suppose a person is there, and he has moved 4 meter in the east direction. 4 meter in the east direction. Okay, and from here, when he has moved 4 meter in the east direction, from there he has moved 3 meter in the north direction. Very easy. You will see is here, isn't it? Along with this magnitude, वो अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन पे गया, isn't it? कहने का मतलब क्या है? That he has moved 4 meter in the east direction and 3 meter in the south direction. Sorry, in the north direction. It means he has moved this. तो ये इसका क्या हो गया? This is what its रिजल्टेंट, ये उसका रिजल्टेंट है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिजल्टेंट पढ़ा था। रिजल्टेंट क्या होता है, isn't it? तो हम चाहेंगे कि आप इसको बेहतर तरीके से जो भी आज होगा आप उसे लिखते जाएं। सो वंस अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट. As I have discussed here, that a person has moved certain distance in the east direction and certain distance in the north direction. Then the resultant is how much? This, isn't it? How we come to know about this? Suppose this is the x direction where a person has moved 3 meter. Okay, and from there he has traveled y is equal to 4 meter in the y direction, because this is the x direction and this is what? Y direction. Then its resultant is this, isn't it? Using the parallelogram you will get this equal to this and this equivalent to this. हम लोग पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ये दोनों को ऐड करके you get this value, isn't it? So here what we are supposed to do, हम लोग यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लाइकवाइज व्हाट वी हैव ड्रॉन, अगर ये जो रिजल्टेंट है जो 5 मीटर आया, द रिजल्टेंट व्हाट वी हैव गॉट, अगर इसको आप इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हाउ यू गेट दिस. ये आप 5 मीटर में, तो 5 मीटर आप कैसे मूव किए? 5 मीटर में से आप 3 मीटर एक्स डायरेक्शन में मूव किए और 4 मीटर आप वाई डायरेक्शन में मूव किए, और उसी का रिजल्टेंट है. तो ये कैसे पता चलेगा कि वो उतना वैल्यूज है? मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 है, तो इसका x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है और y डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट्स चेक. सबसे पहला दिस x डायरेक्शन में, ठीक है, दिस विल बी थीटा. ओके, और ये कंपलसरी है और ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. क्लियर? तो ये हो गया आपका x डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट y एंड दिस इज व्हाट r. इसके बराबर ये, so this is also y and this is also x. if you want you can draw this. ठीक है, तो आपको पता है थीटा से लगने वाला को आप क्या बोलते हैं? If I write x by r, what you get? Base upon hypotenuse will give you what? Cos theta. Base upon hypotenuse क्या देगा आपको? Cos theta. So x is equal to कितना मिल गया? r cos theta. मतलब इस x की जगह आपको क्या वैल्यू मिला? r cos theta. Similarly y by r
means perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular hypotenuse will give you what? Sin theta. So as y component what you will get? R sin theta. मतलब perpendicular direction में y का वैल्यू कितना होगा? R sin theta. Means when you will resolve any vector r into its component, then this will become r cos theta and its perpendicular will become what? R sin theta. Understood? तो ये इसका कंपोनेंट हो गया, ये इसका रिजल्टेंट, और ये दो इसका क्या हो गया? These are the two different components. और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, because it is a form of rectangle. ठीक है, these are the rectangular components. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे होता है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, टेक एन एग्जांपल दैट अगर मान लेते हैं आपके पास एक रेजोल्यूशन है, दिस रेजोल्यूशन इट्स वैल्यू इज 20, ओके, एंड दिस थीटा इज 60 डिग्री. हाउ मच? 60 डिग्री. मीन द रिजल्टेंट वैल्यू यू हैव गॉट व्हाट? 20. So ये डिस्टेंस कितना है? How much this distance? This distance is what? X. तो आपको x डिस्टेंस निकालना है, तो x डिस्टेंस को निकालने के लिए you have to put the value of r cos theta. So let's put the value. R means what? 20 cos 60 degree. So x is equal to cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ. So you will get 10. तो इस डायरेक्शन पे कितना मूव किया? 10. सिमिलरली r sin थीटा करके भी आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो? y का वैल्यू. y के लिए क्या है? r sin थीटा. तो यहाँ पे 20 into sin 60 का वैल्यू को पुट कर देंगे, you will get the desired value. Understood? तो ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है. Understood? Now अब यहाँ पे देखेंगे, इस चीज को और भी ध्यान से देख सकते हैं कि इसका 60 डिग्री है, इसकी जगह अगर 90 कर देंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. तो ये पूरा x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. जरा देखिए कैसे. अभी तो वैल्यू ऐसा है, ठीक है, मानते हैं इसको इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे आप इसको 90 करेंगे तो पूरा का पूरा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0. आप ऐसा भी ध्यान दे सकते हैं कि मान रहे हैं कि सपोज दिस इज योर सरफेस, ये कोई सरफेस है, ठीक है, दिस इज एनी सरफेस. अभी इसके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, बिकॉज इस सरफेस पे और इसके बीच में एंगल कितना है? फिलहाल 0 डिग्री. अब जैसे जिसके इसके एंगल को बढ़ाएंगे वैसे cos थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा और इसका गिरने का प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगा. जितना cos का वैल्यू को डिक्रीज करते हुए जाएंगे उतना उसका गिरने का प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगा. cos थीटा का वैल्यू जैसे बढ़ाते रहेंगे इसका गिरने का प्रोबेबिलिटी बढ़ते रहेगा. समझ में आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? यस. तो इसीलिए कंपोनेंट्स का बहुत जरूरत होता है टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम वेरीफाई करेंगे. फिलहाल इसको नोट इट डाउन, डोंट पोज. इसको फिलहाल आप नोट डाउन करें और इधर इस डायरेक्शन में हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. लेट्स डू द वेरिफिकेशन ओवर हियर. This is what r sin theta. यहाँ this is what 90 degree. This is what 90 degree. This is resultant. This is r sin. This is r cos theta. This is r what? Sin theta. Isn't it? If this is r sin theta, this is also what? R sin theta. ये r sin थीटा, तो ये भी r sin थीटा है.
ये r cos थीटा, तो ये भी r cos थीटा हो सकता है, इज इट इट? नाउ हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या सीखा था, जहाँ पे a, यहाँ पे a b, तो ये इसका रिजल्टेंट था, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए वही फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो पहले a स्क्वायर कौन सा, अगर ये है a तो इसका r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज ये b स्क्वायर है, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab cos थीटा, सो 2r cos थीटा इंटू r साइन थीटा इंटू cos थीटा, बिकॉज 2ab cos थीटा यूज करना है कि नहीं, और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना है 90, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 90, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्यों, बिकॉज ये 90 तो इसे सब मल्टीप्लाई हो गया, बिकम व्हाट 0। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा क्या, r स्क्वायर आगे कॉमन, अंदर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0, दैट इज व्हाट प्लस 0, इट इज नॉट इवन नीडेड टू राइट दैट। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, you will get the value 1, so you have got r स्क्वायर 1। अब ये रूट ओवर से बाहर निकलेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए प्रूव हो गया, अंडरस्टूड। तो दिस इज द वेरिफिकेशन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now here is some applications of resolution of vectors. First I have drawn over here. Take example of this only. सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक आपका इंक्लाइन प्लेन है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, वन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर देयर, ठीक है, and it has the property that if it is kept in an inclined plane with an angle theta, so it will fall down, ये इधर गिरता है, लेकिन इसको गिरना किधर चाहिए था, इसको गिरना इधर चाहिए था, it should have fallen in this direction because इसका mg इधर ही, आप लोगों ने जाना है ना that अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो इसको रोकते हैं तो कैसे रोकते हैं, इसका खुद का वेट है ना mg, तो आप इस पे इतना ही लगाना पड़ेगा आपको mg, तब जाके ये क्या होता है, वहां पे जाकर स्टेबल करता है, वहां पर जाके वो रुकता है, इज इट? तो यहाँ पे अगर ये इधर नहीं आ रहा है नीचे, इसका मतलब क्या है कि इसको रोकने वाला क्या है, वुडन प्लाई, जो कि ये प्लाई है और ये प्लाई इसको रोका हुआ है, अंडरस्टूड? तो ये प्लाई इसको रोका हुआ है, ये आप कहना चाहिए, तो इसका वेट किधर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब इस पे लगने वाला अगर ये थीटा है, ठीक है, और ये तो इसका ये परपेंडिकुलर ये भी थीटा होगा, दिस इज ऑल्सो व्हाट थीटा। अब कैसे, हम आपको ये बताना चाहेंगे, इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जब दो ट्राइंगल्स है, अगर दो लाइन से जिससे ट्राइंगल बना हुआ है या थीटा बना हुआ है, दो लाइन से बना हुआ थीटा है, उस पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर का एंगल भी इक्वल होगा। वन सेकेंड, अगर दो लाइन के बीच में थीटा है, इफ दो लाइन के बीच में क्या है थीटा है, तो दोनों का परपेंडिकुलर के बीच में भी क्या होगा थीटा होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये देख लो, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, तो उनके बीच में भी क्या होगा थीटा होगा, इसको समझना है। अगर दो लाइन के बीच का थीटा है तो उससे बनने वाले परपेंडिकुलर में भी थीटा ही होगा, इसको याद रख लीजिए, ठीक है, तब आपको यहाँ पे क्लियर पता चलेगा, देन दिस बिकम व्हाट थीटा। अगर ये थीटा है, देखो ध्यान से, अगर ये थीटा है, ये mg है, तो थीटा के साथ लगने वाला को क्या बोलते हैं, याद कीजिए, अगर ये
थीटा है तो लगने वालों को क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा। तो ये mg है तो ये क्या बन जाएगा, mg कॉस थीटा। और इसको बैलेंस करने वाला जो इसको रिएक्ट करने वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन। दिस इज नोन एज व्हाट, इट्स रिएक्शन। ठीक है, एक कंपोनेंट तो इसका हो गया। अब इसका एक ही कंपोनेंट तो होता नहीं है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे भी एक कंपोनेंट होता है, दैट इज आर साइन थीटा। तो ये mg cos थीटा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ, दैट इज व्हाट mg sin थीटा। इससे क्या आपको क्लियर तो हो रहा होगा कि इस ये वुडन ऑब्जेक्ट जो है वो गिर किसकी वजह से रहा है, mg sin थीटा के वजह से, नॉट ड्यू टू द mg cos थीटा और ड्यू टू द mg। अब इस बात को ऐसे समझे दैट कि अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है फिर भी इधर गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है, आर गेटिंग थिंग्स। लाइकवाइज हम जाना चाहते हैं इधर और हम जाना चाहते हैं भी इधर, लेकिन हम जा किधर रहे हैं, इधर। तो अब क्या इन दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। कैसे नहीं जा रहे, हम इधर गए यहाँ गए, यही तो इसका रिजल्टेंट है। तो हम तो दोनों डायरेक्शन में गए, तो हम किस डायरेक्शन में मूव किए, लाइकवाइज क्या हम इधर आए, हम इधर नहीं आए तो इसी के डायरेक्शन में मूव किए, बिकॉज का दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट, वन कौन है mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो ये इस डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है। अगर नीचे अगर कोई रोकने वाला फोर्स नहीं रहा तो इट विल फॉल डाउन। तो इसको रोकने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितना फोर्स आपको चाहिए, उतना ही mg sin थीटा के बराबर फिजिकल बैलेंस फोर्स लगना चाहिए। ये फोर्स ये अगर नीचे जा रहा है, इट इज फॉलिंग डाउन, तो किसके वजह से, mg sin थीटा, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो अगर उस अनबैलेंस फोर्स पे अगर आप बैलेंस फोर्स यूज कर देंगे उससे उतना ही बराबर का, तो वो रुक जाएगा। मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितना का है, 100 न्यूटन का है। तो इसको गिरने के लिए हाउ मच इज नीडेड, मतलब इसको रोकने के लिए, यहाँ पे फॉल करने से, स्लाइड करने से रोकने के लिए आपको कितना चाहिए होगा। मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो यू विल राइट mg sin 30 डिग्री and how much mg is 100 न्यूटन into half, so you will get 50 न्यूटन। तो इधर आप कितना फोर्स लगाएंगे, 50 न्यूटन, तो ये रुक जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो, जबकि ये इसका वेट कितना है 100 न्यूटन, लेकिन आपसे 50 न्यूटन लगा के आप उसको रोक लिए, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस थीटा। बिकॉज एंगल का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री होता तो इसका फोर्स आपको ज़्यादा लगता। समझ में आ रहा है, ये कम रहेगा तो कम फोर्स लगेगा। आर यू गेटिंग दैट? तो इस बात को तो आप समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर 1 और दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर 2। तो अगर दो लाइन के बीच में थीटा है तो उससे बनने वाला जो परपेंडिकुलर होंगे उनका भी थीटा ही होगा, इक्वल थीटा होगा। जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो ये और ये थीटा ही होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। नाउ मूविंग अहेड, इफ एल से इस ऑब्जेक्ट को अगर आप दीवार पे ऐसे दबा के रखें और इसको छोड़ देते हैं तो वो गिर जाता है। तो वो क्यों गिरता है, कभी सोचा, व्हाई इट फॉल्स डाउन। देखो ये दीवार है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नीचे लग रहा होगा इसका क्या वेट किधर लग रहा होगा, नीचे। तो इसको रोकने वाला होना चाहिए इसका रिएक्शन, जो कि है नहीं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये हो जाएगा क्या, mg cos थीटा, और यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90, या cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पे लगने वाला mg फोर्स कितना हो जाएगा 0, तो रुकेगा, इट विल क्लियर, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे ये mg, ये 50 न्यूटन का भी आप निकाल लेंगे,
समझे इस हिसाब से, जैसे ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मास कितना है 5 kg, तो इसका वेट कितना हो गया 5 × 10 न्यूटन, दैट इज 50 न्यूटन। तो नीचे कितना काम कर रहा होगा 50 न्यूटन। ओके, तो इधर लगने वाला कितना हो जाएगा 50 × cos 0, मतलब cos 90 के दैट इज वैल्यू 0, यू गेट 0। अंडरस्टूड। तो ये तो था इसका एप्लीकेशन। ऐसे और भी एप्लीकेशन से बात करते हैं उनके। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या काम कर रहा है mg, और इस mg को रोकने के लिए इस पे 2 टेंशन वर्क कर रहे हैं। टेंशन समझ में आता है, खिंचाव, ओके, वो वर्क कर रहे हैं, और इनको स्टेबल करने के लिए पुली लगाया गया। क्या लगाया गया पुली। और इधर एक ऑब्जेक्ट इस पे पुट किया गया और इसे क्रॉस करके इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को रोकिएगा कैसे, इसको रोकने के लिए क्या चाहिए हो। सबसे पहले तो शुरू में इट विल गो डाउन, फिर अगर इसको रोकना होगा तो इसके बराबर का फोर्स यहाँ लगाना होगा इस डायरेक्शन में, इजंट इट। और वो अगर ये mg, तो ये इसका क्या होना चाहिए रिएक्शन होना चाहिए। बिकॉज अगर हम अपने हाथ पे बॉटल रखना चाहते हैं तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है, इजंट इट। जैसे अगर आप एक मोबाइल फोन बच्चे के हाथ में फर्स्ट टाइम देते हैं तो उसका हाथ नीचे चला जाता है, क्योंकि उसको उस फोन का उसका वेट का आइडिया उसको नहीं होता। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स निकालें। तो ये रहा इसके कंपोनेंट्स, ये T1 T2 और ये इसका पैरेललोग्राफ और ये इसका क्या रिजल्टेंट। क्लियर। तो अब इनका भी आप क्या निकालेंगे, इफ these are the two, अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा T1 साइन थीटा T2 साइन थीटा, ये एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल, और ये दोनों रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। बिकॉज ये दोनों कैसा है ऑपोजिट है, जरा देखिए ध्यान दें। ये हम कैंसिल क्यों हो रहा है पहले इस बात को ध्यान दें। मान लेते हैं इधर का फोर्स कितना है 10 न्यूटन, इधर का फोर्स है 6 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 4 न्यूटन। बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट है, ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो ये क्या है माइनस, तो 10 - 6 कितना हो गया 10। अंडरस्टूड। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होता 10 और 6 तो कितना हो जाता 16 न्यूटन। आर यू गेटिंग दैट? तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। अंडरस्टूड। किसी भी वेट को आपने देखा होगा कि अगर उसको बैलेंस करना होता है तो इसी तरीके से कुछ चीजें यूज की जाती हैं टू बैलेंस। अंडरस्टूड। ओके, मूविंग अहेड। ये तो रहा इसका इफेक्ट, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका आपको बता सकते हैं। लाइक मान लेते हैं कि ये 5 kg है, ठीक है, और ये कितना 4 kg, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 6 kg। तो ये इसके बराबर है, मतलब इसका भी कितना होना चाहिए 6 kg, मतलब 60 न्यूटन। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का 6 kg है, तो ये भी 6 kg है, तभी तो बैलेंस है। अंडरस्टूड। चलो अब दूसरा इफेक्ट को देखते हैं हम लोग।
You can see there are 4 different forces. यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट फोर्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। हाउ टू डू दिस, यहाँ पे क्या करना होगा, ऑब्वियसली आपको कंपोनेंट्स निकालने होंगे, तो इसके कंपोनेंट्स निकालने के लिए यू हैव टू डू दिस। इसको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे क्या करेंगे आप, पहले सब डिवाइड कर लेंगे, क्लियर। तो F1 के लिए अगर ये थीटा है तो दिस विल बिकम F1 cos थीटा and this direction will become what, F1 sin थीटा। समझ में आ रहा क्या कर रहा है, रिजल्टेंट निकालने तो आपको आ गया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इफ दिस इज, तो इसके साथ ये वाला हो गया हमारा अल्फा, यहाँ मैंने थीटा लिया तो इसे अल्फा चेंज कर दिया मैंने, तो दिस बिकम व्हाट, F2 cos अल्फा, तो यही वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसका, तो यही वाला क्या बन जाएगा, F1 सॉरी F2 है ना, F2 sin व्हाट, अल्फा। अब ये वाला सॉरी ये वाला फाई बना देते हैं इसको, फाई। तो ये अगर फाई है तो इसका लगा हुआ तो यही है, तो यही बन जाएगा F3 cos फाई, और ये वाला बन जाएगा F3 sin फाई, फाई। ये इसे मान लेते ईटा, तो दिस विल बिकम F1 cos ईटा एंड दिस विल बिकम ओनली, अच्छा F4 है ना ये, F4 sin ईटा। चीजें समझ में आ रही है, आपके पास पहले 4 आर्म्स थे, अब आपके पास कितने आर्म्स हैं, देखिए 8 आर्म्स, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, how many arms you are having now, 8, earlier you had 4, now check, जो एक डायरेक्शन में है उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कॉमन, यहाँ कैसे कॉमन लेंगे, आर्म्स को ऐड कर रहे थे ना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि इधर मेरे पास 2 आर्म है, इधर मेरे पास 2 आर्म है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे माइनस कर देंगे, ये ना कर सकते हैं। तो जैसे F1 cos थीटा है तो F4 cos ईटा के साथ वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये इसके साथ F3 cos फाई, F2 cos अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद आपको एक वेक्टर मिलेगा, यू विल गेट ओनली 1 वेक्टर, तो ये x डायरेक्शन है तो आपको मिलेगा क्या, यू विल गेट ओनली Fx। वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल मिलेगा एक वेक्टर, जो कि वो लोग किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट F y, और इसका रिजल्टेंट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, पहले कितना था 4, फिर 4 से कितने किया आप लोग, 8 से कितना बन गया, 2, 1 2, ये तो इसका रिजल्ट है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द थिंग्स, ऐसे आपको रिजोल्यूट करना है वेक्टर। तो आप यहाँ से फिर अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो F इज इक्वल टू, आपको निकालना आता है, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, निकाल लीजिए, क्लियर है। चलिए pause the video and note it down. Okay, let's start. The next topic is a boat and river. Boat and river. Suppose this is a river whose width is around W and the water is flowing perennial in this direction. Okay. The velocity of the river is v r.
इस पे एक बोट को हम ले आते हैं और उसको यहाँ पे पुट ऑन करते हैं और उसको इधर छोड़ देते हैं, तो ये बोट इधर जाएगी किसके स्पीड से? वी आर क्या है? स्पीड ऑफ द रिवर। तो बोट अगर इधर जा रही है तो किसकी वजह से जा रही है? ये रिवर की वजह से जा रही है, अपने इंजन की वजह से नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जो बोट को स्पीड मिलेगी वो किसकी वजह से? स्पीड ऑफ द रिवर की वजह से। अब उसी वक्त आप चाहते हैं कि इधर मूव करें, तो क्या मूव कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जी रहे किसके बदौलत? रिवर के बदौलत। तो आपको इधर मूव करने के लिए आपको किसका वेलोसिटी चाहिए? बोट का। यू नीड द वेलोसिटी ऑफ द बोट, जो कि कैसे चलेगा? इंजन को ऑन करके। बोट में जो इंजन होगा, पतवार जो होगा, उसको चलाकर, या फिर उसका इंजन मोटर है तो उसको ऑन करके उसको खुद का वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, आप इधर मूव करना शुरू करेंगे, स्टार्टेड मूविंग। अब जब ये मिलना शुरू हुआ तो ये मिलना बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? पानी थोड़ी रुक रहा है, पानी तो उसको धकेलेगा। गेटिंग दैट? तो बोट की वजह से आप इधर जा रहे हैं, पानी की वजह से आप जा रहे हैं इधर, तो ये दोनों किधर धकेलेगा? इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये क्या हो गया? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ boat as well as the river. So you will get 10 alpha is equal to P by B, VB by VR. तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए you will get VB square plus VR. You got this? ठीक है। अगर इसी बीच अगर आपसे पूछा कि यहाँ हो क्या रहा है, आप जाना कहाँ चाहते हैं? यहां अदर साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर। आप पहुंच कहां रहे हैं? अदर साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर। आपने पैसा यहां के लिए दिया, लेकिन आप जा कहां रहे हैं? यहां। इज इट? तो आप कितना डिस्प्लेस कर गए? हाउ मच यू हैव डिस्प्लेस्ड ओवर देयर, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम ये जान लें कि कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू रीच द अदर एंड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, उस डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो याद है? यस सर, आई नो दैट। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, बिकॉज़ हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी गुड, आई नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, so टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आपका 10 मीटर है, आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो आप कह सकते हैं कि टाइम आपका कितना हो रहा है? 5 सेकंड। कहने का मतलब है कि आपको यहां से धनबाद जाना है ना, आधा घंटा लगता है। आपको पता है कि विद इन हाफ एन आवर यू विल बी एबल टू रीच धनबाद सिटी। You are here, Dhanbad is here. Take an example, and it takes 30 minutes to reach Dhanbad, and you are in Digwadi somewhere. ठीक है? And you know that when you will move to the Dhanbad, it will take 30 minutes if I move with the speed of 60 km/h. ठीक है? आप 60 km/h मूव करना शुरू कर दिए, धनबाद पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे। एजम्पशन गलत हो गया। अरे भाई आपने बोल के रखा ना कि सर हम टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरा 12 किलोमीटर है यहाँ से धनबाद, हम आधा घंटा का स्पीड 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, हम आराम से 30 मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे। तो क्या पहुंचे? क्या नहीं था? क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपका डायरेक्शन ही गलत है भाई। आपको जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होनी चाहिए। याद रखें, ये बहुत बड़ा बात है। ऐसे ये यहां मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली बोला जाएगा तो आप ये मिस्टेक जरूर करें। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको टाइम निकालना है
तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन वेलोसिटी कौन सा लेंगे? या तो तीन वेलोसिटी है, v, vr, vb, you will say। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलेंगे? vb। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तब आप यहाँ पे v या vr नहीं लेंगे, तो अब आपको पता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। सो नाउ यू विल राइट व्हाट दिस टाइम इज इक्वल टू v w by vb। ठीक है, याद रहे कि ये आपका क्या है? मिनिमम टाइम होगा। दिस विल बी व्हाट? मिनिमम टाइम, सबसे कम वक्त लगेगा आपको इस डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन क्या आपसे क्वेश्चन कि आप जाना कहाँ चाहते हैं? यहाँ जा कहाँ? वहाँ। इससे तो कुछ नहीं है, तो आप कितना डिस्प्लेस एक्स्ट्रा कर दें? हाउ मच यू हैव डिस्प्लेस एक्स्ट्रा? तो क्या करेंगे? वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे भाई? वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा लेंगे? विच वेलोसिटी यू विल टेक? बोलिए। अब आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन है, मतलब कौन सा लेंगे? समझ रहे हैं कि नहीं? यू कांट टेक दिस। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कौन सा लेंगे? vr। आर यू गेटिंग नथिंग? अब आपको समझ में आ रहा है? और w by vb क्यों लिए? बिकॉज़ ये टाइम, ये टाइम और ये सब। तो ये चीजें बारीकियां हैं जिसको आपको ध्यान से सुननी और समझनी है। आपको बस ये नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट देख गया तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम कर। तो वेलोसिटी कौन सा? तीन वेलोसिटी है। ये चीजों को आपको ध्यान देना। अंडरस्टूड? तो ये वाला जो होगा ये होगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। इसमें वी वांट द व्हाट? द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। लेकिन आप बहुत नाखुश हो, यू आर वेरी अनहैप्पी। क्यों? व्हाई यू आर अनहैप्पी? बोलिए। क्योंकि आपको जाना कहाँ है? आप जा कहाँ रहे हैं? आप उसको पे करेंगे पैसा क्या? ऑब्वियसली नॉट। सो इस बार आप क्या करेंगे? व्हाट सॉर्ट ऑफ बुद्धि यू विल यूज? तो सबसे पहला तो आप ड्रॉप करेंगे रिवर, ठीक है, और बोले कि भैया हमको यहाँ से निकलना है और यहीं पहुंचना है, तभी हम आपको पैसे देंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि ये वाला वेलोसिटी किसका है? बोट का। ये वाला वेलोसिटी किसका है? रिवर का। और आप पहुंच कहाँ जाते हैं? यहाँ। तो अब बोट वाला क्या करेगा? बोट वाला क्या करेगा? वो इधर जाएगा, इधर जाएगा। He will go here, he will come here, and this is the resultant। ठीक है, आप समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? आप सबसे पहले आप वेलोसिटी यूज करेंगे इस डायरेक्शन। आप vb मतलब अपना खुद का जो बोट का जो वेलोसिटी है vb वो इधर यूज करेंगे, और पानी का वेलोसिटी आपको इधर, पानी का वेलोसिटी आपको खींच के ले आएगा कहाँ? दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट vb, एंड दिस इज व्हाट योर रिजल्टेंट v। ट्राइंगल लॉ देख लो, यहाँ पे इसको और इसको, तो ये रिजल्टेंट हुआ। फिर आप यहाँ से चलेंगे, पानी आपको फिर धकेल के यहाँ पहुंचा देगा। आप फिर आप इधर जाएंगे, धकेल के पानी यहाँ पहुंचा दिए। देख लो, आप मूव कहां कर रहे हैं? स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तरीका है। तो हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? अब हम लोग मूव कर रहे हैं रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये समझ में आ गई कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग? तो हमारा यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मूला यूज होगा वो क्या हो जाएगा? W बाय, बोलिए, W बाय V, नॉट VB, नॉट VR। क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम आपका क्या लगेगा? मैक्सिमम। यहाँ पर टाइम क्या लगेगा? मैक्सिमम। क्यों? बोलिए। क्योंकि इसका ये वैल्यू इस दोनों के कंपेयर में ये वैल्यू क्या है? बड़ा कि छोटा है?
छोटा है भाई, ये बड़ा है ये छोटा है ना रिजल्टेंट, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया, बड़ा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बोट का वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू अगर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो दिस विल आल्सो बिकम व्हाट, छोटा। और यहाँ पे इसका वेलोसिटी छोटा हो गया तो ये ओवरऑल क्या हो गया, बड़ा, तो टाइम भी कितना होगा, बड़ा। अरे भाई मान लेते हैं ऊपर का वैल्यू बड़ा है नीचे का वैल्यू छोटा है, तो ये वैल्यू क्या हो गया 5। अगर ये वैल्यू को हम करते 20 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5, देख लो छोटा है हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो दिस इज हाउ यू विल डू द थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस v is smaller than vb, then maximum time and minimum what, displacement, ठीक है। लेंथ कितना है, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम टाइम। इससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशंस है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को नोट डाउन कर लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।